Fourth? Okay, great. Okay, so here we go. Last time. So last time we sort of learned some very important. So we learned something very important. So what was the critical message that I was trying to get across to you? So here's something that I write. It's a mathematical equality, right? 2 over 3 is equal to 4 over 6. Hopefully all of you agree that 2 over 3 is equal to 4 over 6, right? Okay? Okay, let's try another one. Let's write another inequality. Minus 1 times minus 1 is equal to plus 1. Here's another equality that hopefully you agree with, right? Right? Yes. Okay, good. Here's another equality in mathematics that hopefully you agree with. 2 times के बजाय let me change the number. Maybe I want it to be something like maybe 7 times. So maybe 7 is a bit better. Okay. Okay. Here's another inequality. Equality, sorry. I hope you agree with all of these. And sorry? Equality. I might have said inequality, but I really meant equality. So here are some equalities that hopefully all of you agree with. Yeah? Okay. So what was the major lesson that we learnt last time? मैंने कुछ equalities लिखी. So sure, always ask why. So let's start thinking about do we know the reason for any of these equalities? If I ask why, so I'll ask why? मैंने 5 whys. Which one? Okay, the first one. Why is that? So let's say we have a cube. Okay, it's divided in 3. Sorry, a square. Sure, a square. Okay, here's a square. Can it be a rectangle? Okay, yeah, rectangle. Okay, rectangle also works. Okay, then what? We divide the rectangle into 3 parts. I divide it into 3 equal parts. So I'll put it in fact right over 2 parts. 2 parts. Half it? 3 parts. 3 parts. Okay, so here's 1, 2, 3. 3 parts. Then we over in the first fraction it's 2 over 3. So we. So you're saying, so I think this is what you're saying, right? So I'm eating 2 small squares out of this bar of chocolate. So there were 3 squares in a bar of chocolate, and I decided to eat 2 of them. Yes. So now now is equal to 4 over 6. Now the square. So now 1 part of the chocolate is now smaller. 1 part of the chocolate is half now. Yeah. So what you are trying to show me is actually that if I were to half each one of these, so now I have 6 equal parts and I'm eating 4 of them, right? That's the reason why this is true. So now hopefully all of you can see that in general this will be equal to 2 times m over 3 times m, where m is any whole number.
इज़ दिस क्लियर टू एवरीबडी या नहीं? कि जो अब्दुल्ला ने हमें आर्ग्यूमेंट दिया है इज़ शोइंग अस दैट 2/3 इज़ इक्वल टू 2 times m multiplied by 3 times m. Why is that? जी नहीं, इनसे मैं पूछ रहा हूँ सवाल. नो, आई एम आस्किंग हिम, आई एम नॉट आस्किंग यू अभी. सो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं या आंसर कर रहे हैं? क्वेश्चन प्लीज़ पूछिए. No, it depends on how you want to define a whole number. For my definition, whole numbers are 1. 1 से मैं start कर रहा हूँ. If you want, if you will, here you go. If that makes you better, if that makes you feel. मैं इसको 1 से define करना चाहता हूँ यहाँ पे. So this is what I am writing down. If it is unclear, I am saying for any positive whole number. Does it help? Okay. जी, question. Why is that true? Multiplied by m. Yeah. Why can you multiply by m? मैंने अभी आर्ग्यूमेंट दिया, अब्दुल्ला का आर्ग्यूमेंट मैंने सामने लिखा 4/6 के लिए, और फिर मैंने कहा दिस इमीडिएटली जनरलाइजेस टू 2 times m, क्योंकि दिस इज एक्चुअली 2 times 2/3 times 2, तो उसने 2 के लिए किया, राइट? तो why can I generalize to everybody? 2 times m और 3 times m के लिए मैं क्यों कर सकता हूँ? Because m is same. इसका क्या ताल्लुक है? मेरे सवाल से क्या ताल्लुक है इसका जो आप जवाब दे रहे हैं? m is the same in the numerator and the denominator. मेरा सवाल ये है, y is 2/3 equal to 2 times m divided by 3 times m for any m, Any m. which is a whole number, positive whole number. एक सेकेंड, आप जवाब दे रहे हैं या सवाल पूछ रहे हैं? नहीं, जवाब दें जी. प्रूव. अब मैं अंग्रेज़ी तो जानता नहीं हूँ, मुझे तो आई एम ओनली एन आर्टिस्ट एज यू नो कि इन माई प्रीवियस लाइफ आई हैव बीन एन आर्ट टीचर. तो हियर यू गो, कुछ मुझे पिक्चर से समझाए, मुझे और कोई तरीका नहीं है समझाने का. 2/3, हियर इज़ 2/3, हियर इज़ 2/3. ये मैं चॉकलेट खाना चाहता हूँ. दिस इज़ 2/3, द ब्लू चॉकलेट. हैव यू हैड ब्लू चॉकलेट? खाया हुआ ब्लू चॉकलेट? हैव यू हैड ब्लू चॉकलेट? कब कब ब्लू चॉकलेट कब खाया था आपने? नहीं खाया हुआ ब्लू चॉकलेट. ओके, मैं मजाक कर रहा हूँ. जी प्लीज़. जी 2/3 है. दिस इज़ 2/3. मुझे तो 2 का तो मुझे पता ही नहीं है. मुझे 2 times m divided by 3 times m का पता है. That's what I know. m is not 2. अब मैं generalize कर रहा हूँ. मैं 4/6 में interested नहीं हूँ. This is what I want you to prove. I want you to prove that 2/3 is equal to 2 times m over 3 times m. That's what I want you to prove. नहीं, अभी नहीं. मैं जवाब दे रहे हैं. नहीं, हाथ खड़ा करने का कोई फ़ायदा नहीं है. अभी हाथ नहीं खड़ा करें. अब तो मैं जो है वो लोगों से पॉइंटेडली पूछ रहा हूँ. सर अगर हम किसी भी नंबर को m को अगर कोई भी नंबर आते हैं सर, हम फिर उसे डिवाइड करते हैं, तो फिर 2/3 बनते हैं. क्यों? मुझे तो नहीं नज़र आ रहा. सर जैसे कि हमने पहले इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जी. अगर हम उसको फिर हमने सेपरेट कर दिया. वो सामने है आपका, सेपरेट है वो सामने, 2 पड़े हुए हैं. नहीं सर, अगर हम हर बार को 2 इक्वल पीसेस में हम डिवाइड करें. हर बार को, ये बार किसको कह रहे हैं? आर यू टॉकिंग दिस इज़ द बार, दिस इज़ द बार? कौन सी छोटी वाली? इसको मैं 2 इक्वल पीसेस में करूँगा तो मुझे क्या फ़ायदा पड़ेगा? वो मैंने ये प्रूव कर रहे हैं. सो ये आपको प्रूव कर रहे हैं. प्रूव दिस. सवाल ये है. सर अगर हम इसको 2 पीसेस में डिवाइड करेंगे नहीं जी, somebody who is drawing very जी क्योंकि हम ये जिस हमने पहले एग्जांपल जो हमने की है जी, क्वांटिटी वही थी. क्योंकि अब मैं क्या करूँगा? अब मैं क्या करूँगा? मुझे समझा दें, मैं सिर्फ करूँगा. जो 2 हम वहाँ पे m की जगह पे 7 कर दें और 3 हो, लेकिन मैं प्रूव किस तरह करूँगा? मैंने ये प्रूव ऊपर लिखा हुआ है 2 times m over 3 times m. हाउ विल आई प्रूव दिस स्टेटमेंट? कोई पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं जिससे मुझे समझ आ जाए?
ओके, तो कुछ अभी जहन में है कि व्हाट कैन बी डन? ओके जी बेटे। क्योंकि m की दोनों तो ऊपर भी दोनों सेम वैल्यू होगी, जी, तो वो जब डिवाइड होंगे तो 1 ही आंसर आएगा। so you are saying, so you are assuming that I can cancel from the numerator and the denominator. अब मैं सवाल ये पूछूंगा क्यों, right? You'll have to argue a bit more than that. There's an easy, नहीं इन्होंने, हाँ आप बताना बताएं। If you have another shape, another bar, सामने है ये बार पड़ी हुई, ओके एक और बनाना चाहते हैं बार, and अच्छा cut it into the 6 pieces. 6 कहाँ से आ गया? m की मैं बात कर रहा हूँ, मुझे तो 6 का पता ही कोई नहीं है, मैं प्रूव वो कर रहे हैं, वो मैं कर चुका। If there are 3 classes and it contains 2 students, नो दैट्स नॉट गोइंग टू वर्क। जी आपने पहले शुरू किया था, सो यू गेट द फर्स्ट राइट। जी सर अगर हम इस बार को जितने हमारे 3 के साथ m मौजूद है उतने पीसेस में डिवाइड, कितने पीसेस में मैं तोड़ूं? मैं सिर्फ सवाल ये पूछ रहा हूँ, इसको मैंने प्रूव करना है, जैसा मैंने यहाँ पे प्रूव किया था, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा? सर m कोई भी एक रैंडम नंबर हो सकता है। जी है, कोई भी है, तो आप m को यूज़ कर लें। तो जो 3 छोटे पार्ट्स हैं, जो m होगा हम उन छोटे Yeah, पार्ट्स के भी उतने parts exactly. So all that you have to do is कि break this each one of these up into m parts. So this is going to be m, and this is also going to be m, and this is also हर एक को आप m parts में, you're going to break it up into m parts, and now you have 2m out of 3m parts, and you're eating the same amount of chocolate, so that's why 2 over 3 is the same as 2. Is this clear to everybody? ये अगर नहीं समझ आई, so now remember I am eating the blue part, right? मैं एक सेकंड बेटे, so I am eating the blue part, right? Is this clear? Yeah? If I'm eating the blue part, now remember if you think in terms of the big white squares, how many big white squares did I eat? 2, right? And how many big white squares were there in the bar? 3. So I ate 2 out of 3. That's one way to think about it. Another way to think about it is, let's think about the small slivers. Sliver का नाम सुना है किसी? Sliver. Okay, write it down and you will find out the meaning of sliver. Okay, it's not exactly a sliver, but these are small vertical things. लेकिन sliver लिख दें, it's not silver, it's sliver. Okay, write it down, find out what the meaning is. Anyway, so look at these small rectangles. Okay, so अब मैं उतने ही rectangles like the amount of chocolate is the same, लेकिन मैं हर square को m pieces में तोड़ रहा हूँ. So m pieces ये हुए और m pieces ये हुए. So how many small pieces did I eat? 2 m pieces. Is this clear? There's the same amount of chocolate, but I ate 2 m pieces. And how many small rectangles of the entire bar were there? 3m. Is this clear? जी. You wrote 2m over 3m. Yeah. I don't think you need to write 2 multiplied by m. You can just divide. It doesn't matter one way or another. Okay. So अगर कोई मकसद होना चाहिए, raising your hand and asking a question should have a reason. Otherwise, it's a bit disruptive. Okay. आपको पता है कि 2 times m is the same as 2m. So why make this comment? No, I was saying that we don't need to. We don't have to write m over there. M. We don't have to write m. Over there, yes, because we can just divide. But what are we trying to prove then? 2 over 3 is equal to 2 over 3. Is that what you're trying to prove? No. So फिर what was again the comment? I would still like to understand. Right? You understand कि like there are multiple ways of writing something, लेकिन 2 times m, 2m, all the same. Anyway, okay. जी, is this clear to everybody? Why did this speak? जी, sorry, आपका question था. let's suppose I have two water, the blue one and the green one. Yeah. Suppose I have 100 milliliter of water in this one and 50 milliliter of water. They are not equal. So let's start out with this. So हमेशा remember fractions always deal with equal parts. So 100 ml and this is still a 100 ml bottle जिसमें 50 ml है या it's a 50 ml bottle?
दो बॉटल में सर एक Are they equal size with different amounts of liquid? Okay, so they're the same size. They're both 100 ml bottles. One is full. it's not full, but just that it has 100 milliliters. Okay, so आपको size नहीं पता है उस bottle का. Is that what you're saying? Okay, so here's I don't know the size, and this is I don't know the size. This is 100 ml of water. Some amount of water से कुछ है इसमें. इसका कोई और साइज़ है, उसमें 50 ml पड़ा हुआ है. That's all that you care about. Okay, so इसमें 50 ml पड़ा हुआ है. Here's 50 ml of water. Okay, फिर So now if we increase both of the water in this bottle by the same factor, we we increase the amount of water in the bottles by the same factor. For example, we double the water in this yeah 100 ml bottle. The water is equal to 200 ml bottle. yeah And say we'll do the same for the second bottle. right At first it was half, the second bottle was half the first one, 100 milliliter and 50 milliliter. right Now they are 200 milliliter and 100 milliliter. right. The fraction still remains the same. Why? We increase both of the water and both of the bottles Yeah. by the same factor. Then Yeah, but why does the fraction remain the same? That's my question to you. You are telling me that 50 over 100 is equal to 50 times 2 over 100 times 2. That's what you're claiming, right? ये आप claim कर रहे हैं ना. मैं तो ये सवाल ही ये पूछ रहा हूँ why. आप ये कह रहे हैं कि it is obvious. For me it is not obvious. I'm just saying we increasing Yeah, this is what you by said. the same factor. That is exactly what I did. I increased 50 by a factor of 2, 100 by a factor of 2. You are claiming that this fraction is the same as this fraction. My question to you is why? Because we increase by the same factor. So again, okay, if I add 2 milliliters to each, right? So this is my statement. ये अब मैं आपकी मैं अंग्रेजी यूज करूँगा. Okay? Is this true या false? पहले मुझे ये बताएं. प्लस कर रहा हूँ. Sorry, true या false? Married in my mind. Yeah, false या true? That's false. फॉल्स. ओके, अब आप मुझसे, मैं कहता हूँ क्लेम करता हूँ ट्रू, मुझसे पूछें वाई, सवाल पूछें मुझसे, पूछें वाई. आस्क मी अ क्वेश्चन, वाई? Why? ओके, बिकॉज वी एडेड द सेम नंबर टू द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर. दैट्स माई आंसर, राइट? आपने मुझे ये कहा बिकॉज यू मल्टीप्लाई द सेम नंबर इन द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर द फ्रैक्शन इज द सेम. मैंने ऐड किया, आपने मुझसे पूछा वाई, मैंने वही जवाब दे दिया आपको. इज़ दैट एन आंसर? अगर इस वक्त आंसर नहीं है तो आपके केस में क्यों आंसर है? Because we multiply. So मैं भी कह रहा हूँ बिकॉज वी एड द सेम नंबर टू द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर. यू अंडरस्टैंड, योर आंसर बिकॉज कहने से आंसर नहीं बनता. अगर मैं आपसे पूछूं व्हाई डज दिस चॉक फॉल, सवाल पूछते हैं. सो प्लीज़, व्हाई डज दिस चॉक फॉल? पूछें. Why Puch- does this job fall? बिकॉज आई वॉन्टेड इट टू. डज दैट मेक इट एन आंसर? बिकॉज लगाने से आंसर बन गया? नहीं ना बना. सो बिकॉज लगाने से आंसर नहीं बनता. आंसर उस वक्त बनता है this is the reason why you are claiming this to be true, and now convince me कि it's not a reason. Now you can see कि अगर मैं 2 over 3 में I'm doing, if I add here 2 over 3, now see how it breaks down. This is 2 over 3, right? This is 2 over 3. So this is 2 over 3. Now let's play the same silly game जो मैंने की थी. मैं claim करता हूँ this is true, right? अब मैं picture बनाता हूँ to prove to you कि this is true, right? Wait, एक minute, just let me finish. So अब आप कहेंगे कि ये मैंने इतना chocolate खाया था. Remember, this is the chocolate that I ate. This is the chocolate. ये चॉकलेट है और ये मैं एक्चुअली खा चुका हूँ. दिस इज़ अ चॉकलेट. इट डजेंट मैटर कि वो स्क्वायर्स में टूटा हुआ है, वो क्यूब्स में टूटा हुआ है, किस तरह टूटा हुआ है, खाया मैंने इतना ही है चॉकलेट. इज दिस क्लियर? अब मैं इसको हाउ डू आई कन्वर्ट इट? ये मैं एडिशन करके इसको ये पिक्चर बन जाती है. ये पिक्चर मैं बनाने की कोशिश करूँ तो नहीं बनती, बिकॉज जब मैं इसको 5 पीसेज में तोड़ूंगा तो पुराने पीसेज विल गेट डिस्ट्रॉयड. जबकि जब मैंने हर पीस को m पीसेज में तोड़ा था तो द ओरिजिनल पीसेज वर नॉट डिस्ट्रॉयड, सो द इक्वालिटी रिमेन्ड. अब अगर मैं इसको 5 पीसेज में, मुझे इसको 5 पीसेज में तोड़ना है, जब मैं 5 पीसेज में तोड़ूंगा तो क्या होगा?
the order will change, right? This will be 1, जो है ये 2/3 है, so I don't know, I have to convert it into 2, then maybe 3, 4, 5. Now do you see? अब मैं अगर इसमें से 4 pieces खाऊंगा तो I'm actually eating more than what I was eating. So the picture does not hold. So the picture is the proof, your argument कि because I'm multiplying the numerator and the denominator by 2 is not the answer. Okay, is this clear? So एक और अच्छा आपने सवाल पूछा है, because the moral of the story is because कहने से आंसर नहीं बन जाता. Okay? बिकॉज का मतलब ये नहीं है कि आप एक्चुअली जवाब दे रहे हैं. बिकॉज का मतलब ये है कि आपके ख्याल में आप जवाब दे रहे हैं, क्या वो एक्चुअल जवाब है कि नहीं, इज़ टू बी डाउटेड. या इट्स डिसाइडेड एंड यू हैव टू फिगर आउट. ओके, लॉन्गर स्टोरी देन आई वांटेड इट टू बी, बट नाउ वी डोंट हैव Abdullah helped us by doing the first problem, but there's a similar story to each one of these problems. Okay, each one of these is non-obvious. When I look at it, I am surprised that they are true. मेरे लिए बिल्कुल when I am, जब कोई मुझे कहता है तो my hair stand up. I get very excited कि I don't know कि whether this is actually true or not. Like, I mean, because book में कह दिया गया है, इसका क्या मतलब है? Is it true or false? The book states something. No? You never believe the book, because mathematics is not about what? Mathematics is not about, बेटे shoulders सही, शाबाश, सीधा होके बैठे, थोड़ा सा पीछे, shoulders straight, sit up properly. जी, so what is mathematics is not about, लफ्ज़ A से शुरू होता है, फिर अगला U है, A से शुरू होता है, F से नहीं. Please listen. जी, AU, complete the mathematics is not about authority. Okay? Authority नहीं है. ये मतलब नहीं है कि मैंने आपको पहले लेक्चर में कहा था, it is not about this कि अगर मैं I am in a position of authority, being a teacher, that does not make me right. Okay? What makes me right or wrong are the laws of mathematics. And the laws of mathematics are something like this. Okay? If I as a teacher claim this, you will make this picture and say, sir, you're wrong. End of story. Right? Yeah, I mean, that's what you have to understand. कि मेरे सही कहने से, बुक के सही कहने से मैथमेटिक्स नहीं बनता. मैथमेटिक्स बनता है बिकॉज ऑफ द इंटरनल लॉजिक ऑफ मैथमेटिक्स, एंड दैट इज़ वेरी वेरी रिजिड एंड स्ट्रॉन्ग. तो किसी के नीचे नहीं है वो एज इट्स ओन डायमेंशन. एनीवे, सो द पॉइंट इज़ कि रिमेंबर, आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल ऑफ दीज फैक्ट्स एंड मेनी मेनी मोर. ओके, बहुत सारे, इज अ ह्यूज लिस्ट ऑफ फैक्ट्स दैट आई एम नॉट स्टेटिंग हियर. I took a very simple case and showed you why the cancellation law is true in mathematics. So this picture explains what? जी. This picture explains that when we The simple एक law कौन सा है? the law of cancellation law जो हम fractions में use करते हैं, right? We cancel the m's and say कि that is true. So the cancellation law का proof is this picture. Is this clear to everybody? Yeah? लेकिन इन बाकी सब का भी proofs हैं, लेकिन हमारे पास वक्त नहीं है कि हम ये कर सकें. That is what I wanted you to understand. So it is very important to know what you know, and it is very important to know what you don't know. So these are things that you don't know. Okay? So अगर आपको शौक हो तो आप सीख सकते हैं, लेकिन हम बता नहीं रहे, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आपको इसके बारे में नहीं पता. That is what is important. Okay? ठीक है ना? ये वाली कहानी वो नहीं चलेगी. Remember we told a story about there are 7 books, something like this. That's a different story. 3 of them are red and 5. There are 3 blue markers and 5 green markers and 7 children. How many total markers? यहाँ पे the story is kind of different because now you have negative numbers showing up. Right? So it's not the same story. You can't say you have 3 blue markers and 5 markers where blue markers were removed. What does it even mean? कि 3 blue markers से उनमें से 5 blue markers निकाल लिए, तो बाकी 2 कहाँ से निकले जो थे? So I'm just saying you have to think harder about these problems. Is this clear? Yeah? Okay. Moving on.
Okay. G. Okay. Here's let's try doing a fractions problem. Maybe we have enough time, maybe we don't. So let me write it down. So let's try to understand the problem. A stick is divided by red marks. It's kind of a fun problem to do. Into 7 equal parts. Into segments, okay, parts are the same. And 13 and green marks, and by green marks, you don't have to copy it, it's from the book, so you don't have to worry about it. Green marks, it's more important to understand what we are doing. Into 13 equal segments, या parts ही अब कहता हूँ, so I'll just use parts. Then, so अभी हमने सिर्फ marks लगाए हैं, so I would suggest just close the book down, बेटे, close the book down, it's not important. Book हम क्योंकि लिख रहे हैं, तो it's not important. Book बंद कर दें बेटे, जब आपको individually बनाने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए. So, right? So पहले हमने एक stick पर marks लगाए हैं, okay? How many red marks did we put? 7. No, 6, because we broke it up into 7 parts. Okay. Similarly, हमारे 12 बेटे अपनी shirt छोड़ दें when you sitting down, शाबाश. So 13 parts पे तोड़ा है. That means कि हमने 12 green जो है lines लगाई हैं. फिर हमने stick को काटा है. Then the stick is cut. Then the stick is cut into 20 equal pieces. Okay? Prove that any piece except the end pieces. कितने end pieces होंगे? 2, right? Except the 2 end pieces contain exactly 1 mark. Okay. So let's think about this problem. So पहले हमें समझना है. So how about let's try to draw a picture to understand कि हमने prove क्या करना है. Right? So the thing that we are trying to do, so my drawing is going to be awful. So I will apologize ahead of time. So we want to put in 6 red marks, right? So let's try to make it equal. I don't know whether I can make it equal. I'm just going to try. It's going to be 1, 2. No, they're not going to be equal. Okay, whatever. Found out कि 6 नहीं होने वाले यहाँ पे. Let's try to make them slightly smaller. So let's try 1, maybe 2, 3, 4. Okay, अब ज़्यादा छोटा हो गया. 5, and maybe here there's 6. Okay, so we have एक ज़्यादा छोटा बन गया, but that's fine. I think you get it. So these are 7 equal parts पे मैंने red marks से stick को कितने किए? Oh, ये 5 हुए. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, great. I have another thing to do. So here we go. Okay, ठीक है जी, 7 parts. Now I'm going to break it up into 13 equal green parts. Not break it up, marks लगाने हैं मुझे. So remember, this is 7. So I'm going to have 13. They are not 14. अगर added this.
I am going to be terrible at this. Okay, this is going to be just terrible. So I don't know how I'm going to do it. 1, 2, 3, 4, 5. They may be incorrect. ठीक है? So bear with me if they are incorrect. ये कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, 11. I'm sorry. It didn't turn out to be as I wanted them to be. But there are 12 equal parts, right? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oh, good. 12. ठीक है. There we go. Okay? ठीक है जी. ये मैंने मार्क्स लगा दिए. उसके बाद अब मैंने इस स्टिक को 20 इक्वल पार्ट्स में तोड़ा है. पहले मैंने मार्क्स लगाए. आई टुक अ मार्कर एंड आई मार्क्ड इट. सिर्फ मैंने मार्क किया. अब मैं उसको 20 इक्वल पीसेस में तोड़ने लगा हूँ. इज इट क्लियर? और मुझे ये क्लेम ये है कि किसी भी जो छोटा सा पीस है विच इज़ 1/20th ऑफ द स्टिक, इट डज नॉट कंटेन बोथ अ रेड मार्क एंड अ ग्रीन मार्क. इज इट क्लियर? ये सवाल समझ आ गया? अगर किसी को सवाल समझ नहीं आया तो प्लीज़ आस्क. इज द क्वेश्चन क्लियर? या मच बेटर. जी, कोई क्वेश्चन के बारे में, कोई सवाल, कोई चीज़ समझ ना आ रही हो? या ऑल गुड? ओके जी, प्लीज़. No. So we are just going to. This is a big stick. Here's the stick size. And now ये imagine ये colors हैं सारे. And now I'm just going to break it up into 20 equal parts. So that's it. मैं पूरी stick को खट equal length measure करूँगा. Let's say 20 meters. एक मीटर का सारा part मेरा हो जाएगा. That's what will happen. Okay? Is that the question? Okay. जी. Okay. Let's start out easy, which is okay. Let's look at the. What about the two end pieces? Can you tell me anything? Let's think about the two end pieces first. Two end pieces. Can you tell me anything about the end pieces? Remember, each piece का क्या length होगी? No, 1/20. Right? So अगर length है, so I'm going to assume the rod is 1 meter long. So everything, the end pieces, so each piece is going to be 1/20, right? 1/20. So now tell me something about these end pieces, something that is useful about marks. इस पे कोई marks होंगे, और अगर होंगे तो कौन से होंगे? जी, क्यों? हम ओके, सो देखिए, ये मेरे स्टूडेंट्स जो हैं अंडर ग्रेजुएट जो बीएससी कर रहे होते हैं वो भी ऐसे ही कहते हैं. जब हम क्योंकि कहते हैं, मैंने अभी आपको बताया, उससे मतलब ये नहीं लगता कि आप जवाब दे रहे हैं. मैंने आपको सुना है, आपने कहा कि 113 वो ग्रीन इसलिए क्योंकि 13 पीसेस बड़े छोटे होंगे. इसमें मैथमेटिक्स का क्या ताल्लुक़ है? बड़ा छोटे का क्या मतलब है? बहुत छोटे होने का क्या मतलब है? इज़ अ माइक्रोमीटर बहुत छोटा या बहुत बड़ा? अगर आप एटम के लिहाज से देख रहे हैं तो बहुत बड़ा है, अगर आप मेरे लिहाज से देख रहे हैं तो बहुत छोटा है. सो मैं क्या चीज़ बड़ा छोटा, किस चीज़, किन फ्रैक्शंस को मैं कंपेयर कर रहा हूँ? थोड़ा सा हम मैथमेटिक्स कर रहे हैं ना. यू अंडरस्टैंड? सो टॉक से कि ये इनइक्वालिटी इज़ ट्रू, हेंस दिस इज़ ट्रू, हेंस दिस इज़ ट्रू. जी, मैंने सिर्फ एंड पीसेस का पूछा है. सो डू नॉट, सो मैंने सवाल पूछा, आप उसका जवाब दे रहे हैं. सो एंड पीसेस के बारे में मुझे बताइए. जी, आई एम लिसनिंग. ओके, या, सो यू शुड लिसन टू द क्वेश्चन एंड देन आंसर द क्वेश्चन. जी, व्हाट डू यू नो अबाउट द एंड पीसेस? कैन यू टेल मी कि उन पर अगर मार्क होगा, पहले होगा कि नहीं, और अगर होगा तो कौन सा होगा एंड पीसेस पे? एंड आई कुड टेक योर आर्ग्यूमेंट फर्दर. आप बेटे, आपका नाम क्या है? सॉरी, ज़करिया. आई कुड टेक योर आर्ग्यूमेंट फर्दर. देयर इज़ मीट इन द आर्ग्यूमेंट, लेकिन आप उससे मुझे बोल नहीं रहे. जी,
Why? Sir, green parts are smaller due to their fraction. Smaller as compared to what? Smaller का मतलब होता है दो को compare कर रहा हूँ. Smaller As compared to the bigger 7 ones. green parts are smaller as compared to the red ones. Okay, ठीक है फिर. Agreed. 1/7 और 1/13 का फ़र्क है, मान लिया. आगे चलिए. And the one log contains 1/7 is greater than 1/13. Agreed. Fractionally this is obvious. Agreed. अच्छा. and 1/13 is also greater than 1/20. 1/13 is also greater than 1/20. ये भी मैंने मान लिया. इसमें हम कोई बहस नहीं करेंगे. आगे चलिए फिर. So 1/7 1/20 से भी बड़ा Yeah. और 1/13 I agree. Yeah. दोनों से बड़ा. इस वजह से Yeah. So see his argument जो आपको अब formalize कर रहा है वो ये कह रहा है कि हमारा जो end pieces हैं वो 1/20th size के हैं. Right? अगर मैं green को सोचूं तो वो ये length क्या होगी? What's this length? 1/13. तो 1/20th कहाँ पे होगा? वो तो कहीं यहाँ पर होगा, उससे छोटा है 1/20th. Is this clear? ये बात समझ? Because there are 13 equal parts, right? So it's 1/13. So green वाला 1/13 है. Is this clear to everybody? Yeah? So green वाला 1/13 है. हम काट रहे हैं 1/20th में. तो जब हम 1/20th में काटेंगे, यहाँ पे तो मार्क कोई लगा नहीं हुआ. ये वाला मार्क आ सकता था, लेकिन ये 1/13 मीटर्स दूर है, जबकि मेरा पीस 1/20 मीटर्स है, जो कम है. इसलिए उसमें ग्रीन नहीं आ सकता, इसीलिए उसमें रेड भी नहीं आ सकता. या एग्रीड. सो व्हाट दैट मीन्स इज द सेम थिंग अप्लाइज टू द अदर एंड पॉइंट. सो हमें ये पता चल गया 2 end pieces have no marks. देखिए हम व्हाट वी आर डूइंग इज हम लोग अपनी मर्डर मिस्ट्री जो सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें वी आर ट्राइंग टू मेक स्लो प्रोग्रेस. दैट इज़ व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू. राइट? सवाल मुश्किल है. इट्स नॉट वेरी ऑब्वियस हाउ टू डू दिस प्रॉब्लम, लेकिन वी हैव मेड अ स्मॉल डेंट. व्हाट वी हैव डन इज वी हैव फिगर्ड आउट कि एंड पीसेस में कोई मार्क्स नहीं है. दैट्स अ गुड प्लेस. ओके, नाउ हाउ मेनी पीसेस आर लेफ्ट? 2 pieces निकल गए. हाउ मेनी पीसेस? 18 pieces are left. How many marks are there? 18 pieces are left. 18 रह गए क्योंकि 2 तो निकल गए. मार्क्स कितने हैं? मार्क्स कितने टोटल? ग्रीन कितने हैं? ग्रीन कितने मार्क्स हैं? नहीं, 12. और रेड कितने हैं? 18. टोटल मार्क्स 18 marks. Why can't a piece have 2 marks? Some pieces have no marks, some pieces have 2 marks, some pieces have 4 marks. क्यों नहीं हो सकते? या बिकॉज अगर मैं अनइक्वल में कर दूँ तो फिर क्या होगा? मैं कह रहा हूँ बिकॉज दे आर डिवाइडेड. कौन सा मैथमेटिक्स यूज़ कर रहे हैं आप? सो राइट एन इनइक्वालिटी दैट विल कन्विंस मी. यू हैव टू बी मोर केयरफुल. जो बिकॉज है ना इज़ अ वेरी लोडेड आंसर. कि बिकॉज का मतलब बिकॉज नहीं होता. ओके, सो रिमेंबर दैट आर्ग्यूमेंट. अब सोचा करें अगर बिकॉज को मैं चेंज करके कुछ और कर दूँ, डज इट? सो वेट टिल वी गेट टू द एंड एंड यू विल सी कि द बिकॉज एक्चुअली विल मेक सेंस व्हेन आई विल से बिकॉज. अभी आपने देखा मेरा बिकॉज वाज बेस्ड ऑन दीज इनइक्वालिटीज़. नाउ इफ़ यू कांट डाउट माई बिकॉज, because my because is based on a mathematical inequality that you cannot doubt. Okay, thoda sa you have to be careful. Okay, so now there are 18 marks and 18 marks on the stick. Okay, let's see, is it enough to show? I claim it's enough to show that a stick, that a small piece, that a 1/20th piece does not have more than 2 marks, does not have more than
1 mark. Why is that true? अगर मैं ये शो कर दूं कि जो छोटा 1/20th पीस है इस पे एक से ज़्यादा मार्क नहीं है तो आई एम डन. एक्सेंट ठहर जाए जी, कोई और भी आंसर आप आंसर करें या क्वेश्चन पूछ नहीं वेट करें कोई और आंसर. वाई इज़ इट इनफ टू शो दैट? रिमेंबर हमने ये प्रूव करना था कि हर पीस पर सवाए द एंड पीसेस पर एग्जैक्टली एक मार्क है. दैट्स व्हाट वी वांटेड टू शो. मैं ये कह रहा हूँ इट इज़ सफिशिएंट टू शो कि किसी के ऊपर एक से ज़्यादा मार्क नहीं. हमने शो करना था कि हर पीस पर सवाए एंड पीसेस पर एग्जैक्टली एक मार्क है. मैं ये शो करने लगा हूँ कि किसी भी 18 पीसेस जो बाकी बच गए हैं उनमें से एक से ज़्यादा मार्क नहीं है जी. व्हाट इज़ मैं कहता हूँ इट इज़ इनफ. इनफ का क्या मतलब होता है उर्दू में बताएं. नो इट्स नॉट ऑल राइट. दैट्स नॉट व्हाट द मीनिंग ऑफ इनफ इज़. काफ़ी है, सफिशिएंट है, दैट्स व्हाट इट मीन्स. तो व्हाट इज़ इट सफिशिएंट फॉर? नो यू आर नॉट इवन मेकिंग. बेटे हमने प्रूव क्या करना था? What was the original statement? What did you have to prove? We had to prove that in each piece we could use 1 mark. No, that's not. Could is not a precise statement. We must use 1 mark. That is what the statement was. Every piece has exactly 1 mark was a statement. मैं ये कह रहा हूँ कि उसके बजाय except the end pieces, right? ये हमने प्रूव करना था. Except the end pieces, every piece has exactly 1 mark. That's what we have to prove. I am saying दो एंड पीसेस में तो कोई मार्क्स हैं ही नहीं. सो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. बट नाउ बिकॉज वी डिडंट हैव टू प्रूव एनीथिंग अबाउट एंड मार्क्स, नाउ व्हाट आई एम क्लेमिंग इज कि इंस्टेड ऑफ शोइंग कि एवरी पीस एक्सेप्ट द एंड पीसेस हैज़ 1 मार्क, इट इज़ सफिशेंट, इट इज़ इनफ टू शो कि नो पीस हैज़ मोर देन 1 मार्क. नाउ डू यू अंडरस्टैंड व्हाई इज़ इट इनफ? किसी को समझ आइए? आपको समझ आइए व्हाई इज़ इट इनफ? क्या वाई इज़ इट इनफ? अभी नहीं, यू हैव टू म्यूज अबाउट इट. ओके, अभी इट्स नॉट क्लियर टू द क्लास. सो व्हाट वी डू इज़ वी गोइंग टू पिक इट अप अगेन बिकॉज आई डोंट सी अ लॉट ऑफ वी हैव रन आउट ऑफ टाइम एंड इफ आई ट्राई टू रश थ्रू इट वी वोंट अंडरस्टैंड. वी गोइंग टू पिक इट अप अगेन. बट इनफ का मतलब ये था कि जो हमने ओरिजिनल स्टेटमेंट प्रूव करनी थी जो अनफॉर्चुनेटली इरेज हो गई है, विच वॉज दैट प्रूव एनी पीस एक्सेप्ट द 2 एंड पीसेस कंटेन्स एग्जैक्टली 1 मार्क. उस स्टेटमेंट के बजाय मैं ये स्टेटमेंट प्रूव करूँगा. अभी मैंने प्रूव नहीं की. दिस स्टेटमेंट इज़ टू बी प्रूवन. लेकिन अगर मैं ये प्रूव कर दूँ तो देन आई विल बी डन. दैट्स माई क्लेम. ये बात समझ आ रही है या नहीं समझ आ रही? ओके, अगर आपने ओरिजिनल स्टेटमेंट नहीं प्रूव कर रहे बल्कि अब मैं ये स्टेटमेंट प्रूव करूँगा, लेकिन मुझे ये शो करना है कि अगर मैं ये स्टेटमेंट प्रूव कर दूँ तो ओरिजिनल स्टेटमेंट प्रूव हो जाएगी. ये बात समझ आई? अगर नहीं समझ आई तो यू हैव टू आस्क. सो मुझे प्रूव कुछ करना था, मुझे प्रूव करना था ए. अब मैं क्लेम कर रहा हूँ कि मैं ए प्रूव नहीं करूँगा, मैं क्या प्रूव करूँगा? बी, क्योंकि बी इम्प्लाइज ए. ये बात समझ आ रही है आप? या आई एम गोइंग टू प्रूव. सो द स्टेटमेंट वाज आई हैड टू प्रूव ए. ओके, इंस्टेड ऑफ प्रूविंग ए पहले मैं शो कर रहा हूँ आई एम सेइंग बी इम्प्लाइज ए. मुझे ये प्रूव करना है. दैट्स माई क्वेश्चन. मेरा आंसर ये है. आई एम गोइंग टू से फर्स्ट बी इम्प्लाइज ए एंड नाउ आई एम गोइंग टू प्रूव बी. इज दिस क्लियर? हमारा स्ट्रक्चर ये हो रहा है कि इंस्टेड ऑफ प्रूविंग ए मैं पहले प्रूव कर रहा हूँ कि बी इम्प्लाइज ए एंड देन आई एम गोइंग टू प्रूव बी. मेरा आर्ग्यूमेंट जो ये मैं दे रहा था, दिस इज द आर्ग्यूमेंट बी इम्प्लाइज ए. सो ये वाला जो मैंने आपको आर्ग्यूमेंट दिया है यहाँ पर, दिस आर्ग्यूमेंट इज बी इम्प्लाइज ए. ये मैं आपको कन्विंस कर रहा हूँ. यहाँ पे जो मैंने पिक्चर ड्रॉ की है इज ट्राइंग टू कन्विंस यू दैट बी इम्प्लाइज ए एंड नाउ आई एम गोइंग टू प्रूव बी. दिस स्टेटमेंट इज व्हाट आई एम गोइंग टू प्रूव. ये बात समझ आ रही है? आपका एक कमेंट है वो हम बाद में मैं लूँगा. आई कांट टेक इट राइट नाउ.
Okay, so we'll continue this next time. जी. The statement is a hypothesis. Yeah. The second one is the deduction, and you now going to prove it. So मैं टेक्निकल अल्फाज जानबूझ के यूज़ नहीं कर रहा. आई वुड लाइक टू स्टिक टू दिस आइडिया कि मुझे ये प्रूव करना था कि सवाए दो एंड पॉइंट्स के बाकी हर पीस पर एग्जैक्टली एक मार्क है. मैं उसको प्रूव नहीं करूँगा. मैं ये प्रूव करूँगा, मैं ये स्टेटमेंट बी को प्रूव करूँगा कि मैं ये स्टेटमेंट, जो ये वाली स्टेटमेंट है, मैं यहाँ से ये सारी स्टेटमेंट इज़ बी. तो मैंने ये कहा है और ये इसका प्रूफ है कि बी, अगर मैं बी को ट्रू प्रूफ कर दूं तो ए मस्ट नेसेसरली बी ट्रू. ये मेरा क्लेम है कि अगर बी ट्रू होगी तो ए मस्ट बी ट्रू. और ये क्लेम मैंने ये पिक्चर प्रूफ किया है यहाँ पे. तो ये, और अब मैं अगली बार बी प्रूफ करने की कोशिश करूँगा, मैं ए को प्रूफ करूँगा ही नहीं. राइट, आई मीन, और बाकी मैं टेक्निकल जार्गन वो मैं नहीं यूज़ करना चाहता. इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रूफ क्लियर टू यू? आपकी क्लास कौन सी है अभी? ओके, दैट्स फाइन. सो ही विल कम आई गेस. सो इज़ दिस क्लियर? इसके बारे में कोई सवाल? इज़ इट क्लियर? या ये प्रूफ समझ आया है कि नहीं? वाई डज बी इम्प्लाई ए? इसके बारे में कोई सवाल? श्योर? ओके, आपको भी समझ नहीं आया, यू वर नॉट हैप्पी विद इट, राइट? जी. जब हम एंड पार्ट्स को कट करेंगे तब कोई मार्क्स हमारा कम होगा कि नहीं? कम होगा क्या मतलब? कम किस तरह होता है? मार्क्स कम ज़्यादा तो नहीं हो सकता. जो लगा दिए वो लगा दिए. सर जैसे हमारे पास अगर 7 पीसेस में करना था, हम 6 मार्क्स लगाते हैं. राइट. तो 7 मार्क्स से हम 16 पीसेस कैसे बनते हैं? 7 मार्क्स कहाँ पे लिखा हुआ? सॉरी, 17 मार्क्स से. 17 मार्क्स. बेटे ये था, हमारे पास कितने टोटल मार्क्स हैं जो हमने डिस्ट्रीब्यूट करने हैं? नो, 18. 18 मार्क्स ऑन द स्टिक, राइट? 6 प्लस, सॉरी किसी ने कुछ, 6 + 12 18 होता है, राइट? तो 18 मार्क्स से जो डिस्ट्रीब्यूट करने थे, करेक्ट? ओके. और कितने पीसेस थे जिन पे मैंने डिस्ट्रीब्यूट करने हैं? 2 एंड पीसेस निकाल दिए. कितने टोटल पीसेस हैं? 20. 20 में से इफ़ आई टेक आउट 2 पीसेस, हाउ मेनी पीसेस रिमेन? 18 पीसेस. सो 18 मार्क्स, 18 पीसेस. क्लियर? तो ये प्रूव यहाँ पे नहीं हो जाता कि ऑब्वियसली नहीं. अगर मेरे पास 18, आई हैव कितने बच्चे हैं यहाँ पे? 1 2 3 4. आई हैव 4 chalks. आई हैव टू डिस्ट्रीब्यूट 4 chalks अमंग 4 kids. Here, you are my favorite student. Distributed. Done. नहीं, आगे नहीं देना किसी को. आपको मिल गए 4 मार्क्स डिस्ट्रीब्यूटेड अनइक्वली. कहाँ पर लिखा हुआ है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करनी है? डू यू अंडरस्टैंड कि नो वे डज इट से कि इट्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड. सो डिस्ट्रीब्यूट जितना मर्जी कर दें. आपको मैं सारे चॉक्स देता हूँ, उनको कुछ नहीं देता. डिस्ट्रीब्यूशन तो हो गई. इट इज़ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन. इज दिस क्लियर? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन और अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में फ़र्क है. हमें कहीं पे नहीं पता कि द डिस्ट्रीब्यूशन इज़ इक्वल. 18 पीसेज हैं, 18 मार्क्स हैं. सो नाउ यहाँ पे आर्गूमेंट ये था, ये मैंने 18 मार्क्स बनाए. अगर ये 2 मार्क्स, सॉरी 18 पीसेस बनाए. अगर ये 2 पीसेस हैं तो ये बाकी कितने पीसेस बच गए? 16 पीसेस, राइट? 2 पीसेस ये, 16 पीसेस ये, टू मेक 18 पीसेस. अब मैंने एक रेड मार्क यहाँ पे लगाया. लेट्स से इट कंटेन्स अ रेड मार्क. तो बाकी कितने मार्क्स बच गए? 17. लेट्स से मैं इस पर नहीं लगाता. अगर मैं इस पर नहीं लगाता तो कितने मार्क्स मेरे पास बच गए? 17 मार्क्स बच गए ऑन 16 पीसेस. अगर मेरे पास 17, आप लोग कितने हैं? 10 हैं, 10 लोग हैं. मेरे पास 11 चॉक्स हैं. ओके, आई एम गारंटीड कि अगर मैंने सारे 11 आपको देने हैं, किसी ना किसी बच्चे को एक से ज़्यादा चॉक मिलेगा. क्या पता मैं एक ही बच्चे को, आपको मैं 11 के 11 चॉक्स दे दूँ, हो सकता है, राइट? या मैं आपको 3 दूँ, आपको किसी को दूँ, लेकिन आपको मुझे एक से ज़्यादा देना पड़ेगा. क्योंकि अगर मैं हर एक को एक एक दूँगा तो मेरे हाथ में क्या बच जाएगा? एक चॉक.
और वो मुझे किसी को देना है, दैट मीन्स कि किसी ना किसी बच्चे को एक से ज़्यादा चौक मिलेगा। तो ये मैं क्लेम कर रहा हूँ कि अगर मेरे पास इफ़ आई शो कि यू डोंट हैव मोर देन 1 मार्क, दैट इम्प्लाइज कि आई कांट मिस एनी पीस। क्योंकि मैंने ये पीस मिस किया था तो मुझे किसी बच्चे को एक्स्ट्रा चौक देने पड़े थे। अगर मैं ये ना मिस करता, 11 बच्चे थे, 11 चौक्स थे, हर एक को अगर मैं एक एक दे दूँ तो देन आई विल बी डन एंड नो चाइल्ड विल गेट मोर देन 1, राइट? बट इफ़ आई मिस अ चाइल्ड देन आई एम बाउंड टू गिव 2 चौक्स टू सम चाइल्ड। Is this clear or not clear? Is the argument clear or not clear? So do you allow me next time to start from proving B and not have to deal with other things? Is this clear to everybody? You have to be sure. Mathematics is not about half-hearted steps. आपके बिल्कुल solid steps होने चाहिए। जब आप खड़े हुए हैं तो आपको जम कर खड़ा होना है। You can't just wobbly stand, काम नहीं चलता, ठीक है? सो अगर कोई चीज़ अनक्लियर है, माई 2 suggestions, आई सी unclarity in some eyes, okay, I do see unclarity in some eyes. What I'm saying is discussion is a great way to learn. आपस में डिस्कस करें, बिकॉज के पीछे छुपने की कोशिश ना करें। बिकॉज का मतलब बिकॉज नहीं होता, बिकॉज का मतलब यहाँ पे होता है कि अगर मेरे पास 11 चॉक्स हों, here you go, how many? So I have 10 chalks, let's take 10 chalks. Here's my demonstration. Dobara, just to make sure. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 pieces. 10 children. I have to distribute 10 chalks among 10 children. Right? So I give you a chalk. I give you a chalk. That fell down. I give you a chalk. I give you a chalk. I give you a chalk. But I don't give you a chalk. I give you a chalk. I give you a chalk. I give you a chalk. Right? ये क्या हुआ? वो एक चॉक गिर गया मेरा। थैंक यू। आई गिव यू अ चॉक एंड नाउ आई एम लेफ्ट विद अ चॉक। सो आई हैव 2 choices. If I don't like you, I won't give you a chalk and I give him a chalk, right? But he is bound to get 2 chalks. Or I have to give you a chalk, and that's the only option that I have. I give you a chalk because I like you. Okay, चले, ठीक है, thank you. ठीक है? So we'll continue this next time.